I hope I'm clearly audible and visible to all of you. So, good morning to everyone. This is your host Yash Rao from third year Mechanical Engineering Department and also from the Workshop Executive from TNPC. I welcome all of you to the session organized by the Training and Placement Cell with Association of Department of Electrical Engineering under the Urja Talk series of HGS IENT Nanded. So actually the Urja Talk series is an initiative for the Electrical Engineering Department to bridge the gap between the students and the alumni and to talk and make a contact between the alumni and the students. Okay, and aware them about the different opportunities. Right. So HGS Training and Placement Cell has established for the first time. We have active participation from the student side. The cell undergoes the various activities like coordinating the placement drives, awareness among the students regarding the available career options, like organizing the webinar, conducting the workshop, training program, etc. And we are helping them in identifying their career objectives. So before proceeding the program, I welcome all the respected faculties out here. And today, we are having a very special personality. Actually, he is the alumni of Electrical Engineering Department, and currently he is working as a junior engineer at ONGC and also as a teacher at various institutes. He is also the founder of Brainbrush Academy. Now, actually, without any further ado, I welcome Mr. Satish Ranjavan sir to address all of us by his words of wisdom. So, over to you, sir. Thank you. Thank you, sir. All are comfortable with Marathi? All are comfortable Yes, with Marathi? absolutely. I'm Yes, audible? sir. Yes, sir, you are audible, but we don't think that all are comfortable with Marathi. Yeah. Some of the Yes, students are from J&K and some other. So we Okay, think in okay, okay. No Hindi they will problem, be no comfortable. problem. We can continue with some Hindi content and English content. Hello? Yes, sir. yes, sir. You can continue. Okay. Uh, First of all, introduce myself. I'm Satish Ranjwan from 2017 batch pass out. Actually, I'm a 2017 batch. Actually, I'm GS of our college. Uh, College gives lot of memories. After completing the 2017 pass out, I'm going for the preparation for government exam. I'm came मैं पुणे में आ गया. मैं मराठी इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ. मैं हिंदी में बात करता हूँ. मैं पुणे में आ गया. पुणे में प्रिपरेशन किया. उसके बाद 1 डेढ़ साल में मैं प्रिपरेशन के टर्म्स में मैं टीचिंग के लिए भी डिवोट हो गया और उसके बाद 2-3 एग्जाम्स मैंने क्लियर क्लियर कर दिया और अभी मैं एज अ जूनियर इंजीनियर पोस्टिंग पे ओएनजीसी पे हूँ और उसके पैरेलल में जॉब पैटर्न के पैरेलल में जॉब पैटर्न के पैरेलल में मैं अपना टीचिंग का जो मेरा पैशन है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लड़के प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए गाइडेंस, उनके लिए टीचिंग वेरियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सब्जेक्ट मैं टीच करता हूँ। तो मैं आज आपको ये सेशन में ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ। जो बंदे जिनको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, आज आजकल तो ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट एग्जाम गवर्नमेंट में लगना मतलब एक सपना हो गया है। तो कैसे प्रिपेयर करना है? हर एक सोचता है कि सर गवर्नमेंट के लिए हम जाने, लेकिन पाथ एक्चुअली क्या होता है, हम आते हैं कॉलेज से, कॉलेज पास आउट होते हैं तो पर्टिकुलर पाथ पता नहीं चलता कि ये सब्जेक्ट कहाँ से करना है। मतलब कौन-कौन से एग्ज़ाम होते हैं पहले तो वो पता नहीं होता, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है। तो आज हम पूरा इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं। सो कैन आई शेयर माय स्क्रीन? Sure. Yes, sir, share.
visible? It's visible. Yes, sir. Yeah, sir, it's visible. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदे पास आउट डिग्री और डिप्लोमा दोनों की अपॉर्चुनिटीज बता देता हूँ मैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज है जब आप पास आउट होते हैं इंजीनियरिंग से। सो पहले आप एक तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं और एक डायरेक्ट 12+ इंजीनियरिंग, दो बैकग्राउंड के स्टूडेंट आते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? तो पहला आता है डिप्लोमा बेस, डिप्लोमा के जो स्टूडेंट होते हैं डिप्लोमा, और दूसरा होता है कि डायरेक्टली 12+ इंजीनियरिंग, 12+ इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं। मैं सिर्फ पॉइंट नोट डाउन करूंगा, ज्यादा बातें करूंगा क्योंकि एक्चुअली ये फिजिबल नहीं है मेरे को। जूम ऐप पे मीटिंग करना उतना फिजिबल है उतना इस ऐप पे नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाएंगे तो प्लीज कंसिडर इट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दो अपने जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो दो बैकग्राउंड के लोग होते हैं, एक डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग किया होता है और दूसरे बंदे जो होते हैं कि 12+ इंजीनियरिंग होता है। तो डिप्लोमा जिन्होंने किया होता है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग। क्योंकि क्या है, महाराष्ट्र में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल के आपको हम क्या सोचते हैं, हमारे पास कौन कौन से एग्जाम है? महाडिस्कॉम है, महाडिस्कॉम, महाडिस्कॉम एक एग्जाम है, दूसरा है महाट्रांसको, और तीसरा है महाजनको। ये बेसिकली इसको बोलते हैं ऑल एडिशन को बोलते हैं एमएससीपी। ये जो है मेन टारगेट होता है हर एक बंदे का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो पास आउट होता है जिसको गवर्नमेंट में जानना है, एमएससी भी उतना पता होता है। लेकिन मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि जो बंदे इनके ही बीच में अटके हुए हैं, अभी 3 साल हो गए इनमें रिक्रूटमेंट नहीं है, 3 साल हो गए कि महाजन को, महाट्रांस को, महाजन को में रिक्रूटमेंट है। तो अदर पीएसयू में जूनियर इंजीनियर, एज अ जूनियर इंजीनियर, डिप्लोमा वालों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, वो महाराष्ट्र के बंदे को पता नहीं है। एक्चुअली जो महाराष्ट्र के बंदे हैं वो बहुत ही, जो उनकी थिंकिंग है एक्चुअली वो वाइड नहीं रखते हैं। ये अपने में प्रॉब्लम है क्योंकि क्या है, हम दूसरे पीएसयू दूसरे स्टेट्स में जाना नहीं चाहते, हम हमारे ही स्टेट में हम वर्क प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा एक प्रॉब्लम है। देखो, हमारे यहाँ ज्यादा पॉपुलर 3 एग्जाम है, उस उन एग्जाम के बारे में मैं बोलूंगा, लेकिन अदर एग्जाम के बारे में मैं बोलूंगा। एक्चुअली ये 3 एग्जाम है, उनके बारे में मैं पहले ऑल क्लियर कर देता हूँ। जो कि फेवरेट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो पास आउट होता है उसको लगता है कि मैं एमएससी में भी जॉब करूंगा। एक्चुअली मैं टीचिंग पहले अभी 10-12 बैचेस हो गए कि मैं महाडिस्कॉम, महाट्रांसको, महाजन को ये बैचेस के लिए टीचिंग कर रहा हूँ और गेट के कई सब्जेक्ट के लिए टीचिंग कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है हर एक डिप्लोमा के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, वो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। फिर कैसे अपने को प्रिपरेशन करना है और कैसा एग्जीक्यूट करना है एग्जाम में, और अदर एग्जाम्स कौन से है, ये 3 टॉपिक्स लेकर मैं पूरा अपना एक आधा घंटे का जो सेशन होगा वो कवर अप करूंगा। देखो पहले, देखो जो अपना फर्स्ट टॉपिक है महाट्रांसको, महाजनको, महाडिस्कॉम, इसमें तो पोस्टिंग कौन कौन सा होता है वो पहला पॉइंट है। जो पहला पहला पोस्टिंग होता है वो होता है जूनियर इंजीनियर, ओके, और दूसरा पोस्टिंग होता है असिस्टेंट इंजीनियर जो पास आउट हुए। ये बेसिक सी बातें है तो थोड़ा ये कर दिए। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा लगता है, क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन का है डिप्लोमा, डिप्लोमा मस्ट है, डिप्लोमा मस्ट है। देखिए ये जूनियर इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा मस्ट है, और डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग भी किया है तभी भी आप एप्लीकेबल हो वो जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। जब असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग किया है तो ओके, मतलब इधर मिनिमम क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है। तो जब असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए करते हैं 12+ इंजीनियरिंग भी दे सकते हैं, 12+इंजीनियरिंग और डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग दोनों भी बंदे दे सकते हैं। लेकिन जो जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है उसको डिप्लोमा प्लस, डिप्लोमा किया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसने डिप्लोमा किया है वही एलिजिबल है। एक्चुअली ये तीनों, ये जो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर है, ये महाराष्ट्र में जो अपने एमएससीबी में 2 सेक्टर में ही होते हैं। एक तो महाजन को देखो,
महाजनको में ये 2 पोस्ट होती है, पहला तो, और दूसरा जो है महाडिस्कॉम, सॉरी महाडिस्कॉम। ये दो सेक्टर में इनका पोस्टिंग होता है। और जो महाट्रांसको है, उनमें जो पोस्टिंग होता है सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर का होता है। क्या होता है? असिस्टेंट, एई, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एई। ओके, तो महाजनको में 2 जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर होता है। डिस्कॉम में भी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट। सिर्फ ट्रांसको में क्या होता है? ट्रांसको में अपने को सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर का अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो डिप्लोमा किया है और जो इंजीनियरिंग भी पास आउट किए उन बंदों के होता है, क्योंकि वो दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही 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 के लिए अभी केस एक चल रहा है तो उसका भी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन टिल डेट अपन डिप्लोमा के बंदे जूनियर इंजीनियर को मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ओके, अभी इसके बाद एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इन एग्जाम का जो फेवरेट एग्जाम है उनका पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन डिजाइनिंग कैसा होता है। देखो बेसिकली 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है, उन 150 मार्क्स का पेपर होता है। आउट ऑफ 150 डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, टेक्निकल, नॉन टेक। नॉन टेक में मैं बोलूंगा इधर ही दो पार्ट करता हूँ। एक मराठी होता है और एक एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एप्टी होता है। देखो इसमें जो टेक्निकल होता है वो ज्यादा वेटेज का होता है, पूरा 150 मार्क्स का पेपर है। तो जो मैं पहला पोर्शन बताने वाला हूँ वो टेक्निकल है। टेक्निकल में अपने को लगता है कि अभी टेक्निकल 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, उसमें से जो टेक्निकल निकल के आता है वो टेक्निकल 110 मार्क्स का होता है। बहुत ही ज्यादा वेटेज का, टेक्निकल्स को बहुत ज्यादा वेटेज है। आउट ऑफ 150 110 मार्क्स, अप्रोक्सीमेट 70 to 75% जो वेटेज है वो टेक्निकल को है। 70-80% भी बोल दीजिए टेक्निकल को है। जब आप प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम के लिए तो टेक्निकल के जो सब्जेक्ट्स है, जो कोर सब्जेक्ट है, उनको अच्छे से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरे जो होते हैं, देखो टेक्निकल का मैंने बता दिया 110 मार्क्स के लिए। जो नॉन टेक में होते हैं, नॉन टेक में बेसिकली क्या होता है, मराठी होता है जो 10 मार्क्स के लिए आता है। और जो रीजनिंग में 2 टाइप होते हैं, एप्टी और रीजनिंग। एप्टीट्यूड और रीजनिंग में एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का होता है, सॉरी एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का होता है, प्लस रीजनिंग 20 मार्क्स का होता है। ये टोटल मिला के 30 मार्क्स होता है, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग। और मराठी 10 मार्क्स का होता है, ये टोटल मिला के 40 मार्क्स। नॉन टेक जो होते हैं वो 40 मार्क्स है, ये पूरा नॉन टेक है वो 40 मार्क्स का है, सॉरी ये पूरा नॉन टेक जो है ये 40 मार्क्स का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो टेक्निकल, जब इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आप ऑल इंडिया लेवल पे एसएससी जेई का भी प्रिपरेशन करते हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप प्रिपरेशन मोड में हो। तो हम कौन से सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें, पहले भी डिस्कस अबाउट टेक्निकल सब्जेक्ट कि मैं टेक्निकल सब्जेक्ट टीच करता हूं तो मैं ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि अपने को इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट जो मेजर इंपॉर्टेंस है, अभी एनालिसिस किया है मैं 4 ईयर्स से इस बैकग्राउंड में है, वेरियस इंस्टीट्यूट को पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का भी एक इंस्टीट्यूट है। तो मैं एक्सपीरियंस किया है कि एक क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट का, कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज होता है। एक्चुअली हम इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, इंजीनियरिंग में इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि उनमें से यूजफुल क्या है और नॉट यूजफुल क्या है ये अंडरस्टैंड करना, मतलब प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो आज सेशन पाटिल सर ने कंडक्ट किया, तो पाटिल सर को मैं थैंकफुल बोलना चाहता हूँ कि मैं क्लास में हर बार कम्युनिकेट करता हूँ कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये दोनों में फर्क समझ में आ गया। तो आपको आधा सिलेबस है ना, जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उसका आधा सिलेबस, आधा नॉलेज आपको मिल जाता है। तो आज इस सेशन में उतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल सब्जेक्ट के, नॉन टेक्निकल के मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट जो प्रिपेयर करते हैं उनमें से क्या है, क्योंकि इंजीनियरिंग में हर एक सेम में 5-5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सेम के मिला के 20 तक सब्जेक्ट जाते हैं, उनमें से कौन सा है। देखो मैं पहले तो
टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करता हूं। टेक्निकल सब्जेक्ट में सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट, ओके, टेक्निकल सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं। टेक्निकल सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला सब्जेक्ट है जो है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल। जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टार्ट करते हैं तब इस सब्जेक्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली हम डरते हैं इस सब्जेक्ट से क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में सिर्फ हम क्या है टर्मिनोलॉजीज लर्न करते हैं, कैपेसिटर क्या है, इंडक्टर है, करंट क्या है, लेकिन उनमें से एग्जाम को क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होते हैं ये पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या आता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती है, और जो आप नेटवर्क सीखते हैं सेकंड से में, जो नेटवर्क सीखते हैं सेकंड ईयर में, जो नेटवर्क सीखते हैं वो बेसिक इलेक्ट्रिकल का 50% कवर करता है। वो बेसिक इलेक्ट्रिकल का 50% कवर करता है। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में बेसिकली क्या आता है, सब थ्योरम्स आते हैं जो आप पढ़ते हैं, सब केसीएल केवीएल आता है, और बेसिक टर्मिनोलॉजी, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस रिडक्शन क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजीज बेसिक में इलेक्ट्रिकल में आते हैं। तो एसी सर्किट्स आता है, जो आप फर्स्ट ईयर में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़े चुके हैं, लेकिन उसमें से कौन से अप्रोच से आपको जाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी के पेपर बहुत ही लेंदी होते हैं, हम उस तरीके से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हो तो वो बेसिक इलेक्ट्रिकल के हर एक क्वेश्चंस को कैसे लर्न करना है, अपना सपोज मैं एक ब्रिज बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादा लेंदी नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या क्या होते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली एक हमने वेस्टर्न ब्रिज एक मेथड सुना है, सॉरी, वेस्टर्न ब्रिज मेथड सीखा है। उसमें क्या होते हैं रे, 4 ब्रिज के टर्मिनल्स होते हैं, ओके, 4 ब्रिज के टर्मिनल्स होते हैं, ओके, और बीच में से गैल्वानोमीटर होता है, ओके। थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्या है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछते हैं, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, R3 है, R4 है, सॉरी ये गैल्वानोमीटर इधर से है बीच में से, सॉरी मेरे बताने का पर्पज क्या है, गैल्वानोमीटर वेस्टर्न ब्रिज का कंसेप्ट क्या है, जब बैलेंस ब्रिज होता है R1 इंटू अपोजिट आर्म्स की जो रेजिस्टेंस की मल्टीप्लीकेशन होती है, वो जब बैलेंस होती है, जिसको पता नहीं वो मतलब ऐसा इरिटेट मत हो जाइए, क्योंकि मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या चाहती है, स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट चाहती है, और जो स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है उनसे ही क्वेश्चन डिजाइंस होते हैं जो कि इजी फॉर्म में होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और जो आप प्रिपरेशन करने जाओगे तो 8 मार्क्स के लिए टोटल देखो 55 क्वेश्चंस होते हैं जो 110 मार्क्स के लिए आते हैं, पूरे एई जेई के लिए दोनों प्रिपरेशन के लिए, उसमें से एक क्वेश्चन 2.2 मार्क्स के लिए हो गया। देखो एक जो क्वेश्चन है 2.2 मार्क्स के लिए हो गया, मतलब 110 क्वेश्चंस, 110 मार्क्स 55 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से बेसिक इलेक्ट्रिकल 8 क्वेश्चंस देते हैं। इस क्वेश्चन ये सब्जेक्ट मिला के देता है, तो 8 क्वेश्चंस मतलब ये बहुत ही ज्यादा वेटेज का सब्जेक्ट है, और जो प्रिपरेशन शुरू करते हैं तब यही इसी सब्जेक्ट से करना चाहिए। अभी दूसरा बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, दूसरा सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल होने के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट जो है वो नेटवर्क ले सकते हैं। सपोज क्योंकि क्यों नेटवर्क लेना है सर, नेटवर्क क्यों लेना है, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एग्जाम का तो नेटवर्क क्यों लेना है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने 50% जो है तो नेटवर्क कवर कर दिया, सिर्फ क्या रह गया है नेटवर्क में, ट्रांजिएंट रह गया है, ट्रांजिएंट एक टॉपिक है, और 2 पोर्ट नेटवर्क, सॉरी 2 पोर्ट नेटवर्क, ओके। ये 2 टॉपिक बचे हैं, सिर्फ इसको प्रिपेयर करने के बाद आपका, और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन छोड़ने के बाद नेटवर्क, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क को एक ही सब्जेक्ट मानता हूं, क्योंकि वो 10 क्वेश्चंस देता है, क्या करता है
10 सब्जेक्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मिनिमम कौन से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जूनियर लेवल के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए नेटवर्क जो है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो 10 क्वेश्चंस देता है, मतलब 10 क्वेश्चन मतलब 20 to 25 मार्क्स का वेटेज ये क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट देके जाता है। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? एक्चुअली वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो वी लव कोर सब्जेक्ट्स। ओके, तो जब आप गेट में प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर सब्जेक्ट के लिए उतना डिमांड नहीं देते हैं, लेकिन जब आप प्रिपेयर करते हो महाडिस्कॉम, महाट्रांसको, एई जेई एग्जाम के लिए, तो आपको कोर सब्जेक्ट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि उन सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। दूसरा, जो सिंपल सब्जेक्ट और अच्छा सब्जेक्ट जो है, आपको जो पसंद आता है कोर सब्जेक्ट में से वो लेना चाहिए। जब हम टारगेट ही है, गेट टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है कि पीएसयू के लिए, जो स्टेट लेवल के पीएसयू है और ऑल इंडिया लेवल के पीएसयू है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है, एई के लिए, जेई के लिए। तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट होने के बाद डायरेक्टली शिफ्ट हो जाइए एक कोर सब्जेक्ट के। कौन सा ही एक कोर सब्जेक्ट? एक दो कोर सब्जेक्ट है हमारे पास, मशीन्स और पावर सिस्टम। ओके, दो सब्जेक्ट है मशीन्स और पावर सिस्टम। इसमें से मशीन्स में हम हर एक सेम के लिए अलग अलग मशीन स्टडी करते हैं, डीसी मशीन स्टडी करते हैं, कभी एसी मशीन स्टडी करते हैं। तो हम मशीन्स जब प्रिपेयर करेंगे तो मशीन्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कभी भी मशीन्स पढ़ते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट में मैं डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि सब मशीन्स इंडिपेंडेंट है, 4 मशीन्स इंडिपेंडेंट है। जब आप नेटवर्क के कंसेप्ट, फेजर डायग्राम अच्छे से रीड कर पाओगे, तभी मशीन और पावर सिस्टम को जा पाएंगे, क्योंकि उसमें फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है जब हायर लेवल के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो मशीन और पावर सिस्टम, ये दोनों ही सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंस है। ये 10 to 12 क्वेश्चन देके जाता है और ये 20 to 12 क्वेश्चन देके जाता है, मतलब ये दो सब्जेक्ट मिला के पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 50% वेटेज देके जाते हैं। तो जब आप प्रिपरेशन करने लगे तो मशीन और पावर सिस्टम को बहुत ही इंपॉर्टेंस देना। बट आप प्रिपेयर कर रहे हो गेट के लिए तो इनको इतना इंपॉर्टेंस मत दो, लेकिन आप प्रिपेयर कर रहे हो स्टेट लेवल, ऑल इंडिया लेवल पीएसयूज के लिए, जो एक उनका एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मशीन और पावर सिस्टम को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये दो सब्जेक्ट 50% ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर अप करते हैं। तो मशीन और पावर सिस्टम में क्या रीड करना है सर? मशीन में मैं बोलूंगा कि तुमको बहुत सारे मशीन्स पढ़ाए जाते हैं, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है मैं 4 मशीन्स में कन्वर्ट करूंगा। जो पहला जो मशीन्स है वो सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में पूरा सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर, ये दोनों ही टॉपिक्स अच्छे से करना। ये मशीन तुमको 2 to 3 मार्क्स देता है, 2 to 3 क्वेश्चंस देता है, सॉरी 2 to 3, ईच मशीन 2 to 3 क्वेश्चंस देता है। इसके मिला के 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस मिला के देते हैं। देखो, दूसरा जो मशीन है वो ट्रांसफॉर्मर है। मैं मशीन नहीं बोलूंगा, क्योंकि मशीन जो होते हैं, जो रोटेटरी पार्ट होते हैं, तो टेक्निकली वर्ड्स में मैं उसको डिवाइस बोलूंगा। ये मशीन नहीं, जिसमें रोटेटरी पार्ट होते हैं उसको मशीन बोलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर, ओके, ट्रांसफॉर्मर। दूसरा जो अपना मशीन्स है, मशीन्स में जो अपन लर्न करते हैं वो ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को उतना कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को 90% वैटेज होता है, 10% जो होता है उसमें मिसेलेनियस ट्रांसफॉर्मर होते हैं, मतलब स्पेशल ट्रांसफॉर्मर। उसमें स्पेशल ट्रांसफॉर्मर में 3 फेज स्पेशल और सिंगल फेज स्पेशल। ओके, स्पेशल ट्रांसफॉर्मर में कौन से आते हैं? वीवी ट्रांसफॉर्मर। आपको याद आता होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सब बैठे हैं तो याद आता होगा। तो मैं ये बोलता हूं कि आपको याद है तो वीवी कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन और स्पेशल ट्रांसफॉर्मर जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये 3 ट्रांसफॉर्मर का 10% जो वेटेज होता है, उनमें से क्वेश्चन 100% उनमें से क्वेश्चन डिजाइन होता है। दूसरे ट्रांसफॉर्मर करने की जरूरत नहीं है। यही है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन से पॉइंट को फोकस करना है, कौन से पॉइंट को इग्नोर करना है, ये आना चाहिए। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिंगल पे ट्रांसफॉर्मर को ज्यादा वेटेज है। और एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर लर्न करते हुए वर्किंग ऐसा लर्न करना नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या मांगता है उस तरीके से आपको लर्न करना है। अभी मैं एक सिंपल बोलता हूँ एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर के बारे में।
कि कौन सा कोर होना चाहिए, कौन सा कोर होना है। पढ़ा होता है सिलिकॉन स्टील कोर है, लेकिन अपने को सिलिकॉन स्टील की प्रॉपर्टीज, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका सब पता होना चाहिए। उसका डायग्राम, उसका कोर का डायग्राम क्या है, अंदर जो डाइपोल्स होते हैं वो मूव कैसे होते हैं, फिर उनका डिसएडवांटेज क्या है, दूसरे डाइपोल्स का दूसरा कौन सा है, सीआरजीओ, उस पे एक टेक्निक अप्लाई किया जाता है, उसको सीआरजीओ बोलते हैं, उसका कोर बनाया जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब एक स्मॉल स्मॉल थिंग्स है। कौन सा टेक्निक सिलिकॉन स्टील पे अप्लाई किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। फिर उसमें से क्या होता है, वो क्यों टेक्निक यूज की जाती है, ऐसे जो स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है जो कि इजी है, लेकिन हम उतने डीप तक अप्रोच नहीं कर पाते, तो उनको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, अभी ट्रांसफॉर्मर में मैंने बता दिया, सिंपल क्वेश्चन बता देता हूँ, चंदन सर भी होंगे, तो उन्होंने हमको मशीन पढ़ा है, तो मैं बोलता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर का सिंपल क्वेश्चन है कि अभी आया था महाडिस्कॉम जेई में क्वेश्चन आया था, अभी तुम्हारा पावर फैक्टर 0.8 है लैग, उस पर इफिशियंसी 98% है, मैं थेरोटिकली बोल देता हूँ, 0.8 पावर फैक्टर है, 90% इफिशियंसी है। जब तुम्हारा 0.8 लैग है, 0.8 लीड किया तो कितना इफिशियंसी हो गया। ये सिंपल थिंकिंग का क्वेश्चन है। हम पावर फैक्टर ट्रांसफॉर्मर में इफिशियंसी को इंपैक्ट ही नहीं करता, उसके कैलकुलेशन में पावर फैक्टर आता ही नहीं है। तो हम ऐसे स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट होते हैं जो कि क्वेश्चन डिजाइन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस, मतलब पढ़ाई करते हो कैसे फोकस करना है, फॉर एग्जांपल मैंने दिया, लेकिन ऐसे स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है, उससे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको आपका अप्रोच ठीक होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब बंदे पढ़ते हैं तब अप्रोच अलग होता है और पढ़ते कुछ और है। देखिए, सेकंड सब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मर हो गया, अभी अपने को सब सब्जेक्ट कवर करना है, क्या पढ़ना है उसमें से क्या नहीं, मैं ब्रीफ में बता दूंगा। तो आप सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इसका आपको एडवांटेज थोड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि अभी महाट्रांसको की ऐड आने की संभावना है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए अभी से। कुछ हेल्प है तो मेरे को कभी भी एनी टाइम कॉल कीजिए। एज ए एचजीजीएस एल्यूमनाई आई कैन हेल्प वट एवर फ्रॉम माई साइड। बघा, ट्रांसफार्मर हो गया, उसका बाद जो मशीन होता है वो डीसी मशीन होता है, सॉरी डीसी मशीन्स में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इसमें से सब मोटर, सब कंस्ट्रक्शन, सब जनरेटर के, और अपने को लर्न अंडरस्टैंड करके लेना है, राइटिंग में नहीं लिखना है। एग्जाम में 10 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, इधर इधर एक ही टिक करना है, 4 ऑप्शंस आएंगे, इसी तरह से लर्न करना है, उसके प्रॉपर्टीज का है, क्या फीचर्स है। ओके, वाई सीरीज मोटर इज नॉट स्टार्टेड ऑन नो लोड, ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन उसका क्या रीजन है, एक्चुअली उसका इफेक्ट क्या होता है, इस पे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं मशीन्स में। और लास्ट जो मशीन है, आपका फेवरेट मशीन है, जो एसी इंडक्शन मोटर, एसी इंडक्शन मोटर। ओके, एसी इंडक्शन मोटर में 2 मोटर्स होते हैं, एक होता है एसी सिंगल फेज और 3 फेज मोटर। ये 2 मोटर लर्न इसी एक हर एक मशीन से दो तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से मशीन्स पूरा कवर हो जाता है, और मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो पावर सिस्टम आता है। पावर सिस्टम में, अभी पावर सिस्टम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है पावर सिस्टम। पाटिल सर है इधर, उन्होंने हमको पावर सिस्टम पढ़ाया था। पावर सिस्टम में हम 3-4 साल पूरा पावर सिस्टम एनालिसिस, फिर पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स, फैक्ट्स, ऐसा बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पावर सिस्टम पूरा इंजीनियरिंग में एक ऐसा सेम नहीं है उसमें पावर सिस्टम नहीं होता है। तो पावर सिस्टम पढ़ते वक्त क्या पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर सिस्टम में एक पार्ट है, मैं 4 पार्ट में पावर सिस्टम को डिवाइड करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो 50% ऑफ पावर सिस्टम के मार्क्स को एक्वायर करता है। और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन, इंसुलेटर्स, उसका स्ट्रिंग इफिशियंसी, फिर उसका कैपेसिटर इंप्रूवमेंट्स, कौन कौन से कैपेसिटर्स होते हैं, उसके बाद जीएमडी जीएमआर के कंसेप्ट, ये सब बेसिक्स है ना, सब बेसिक्स है, उसमें इंक्लूड होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, जो कि हम सेकंड ईयर में, फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तब बहुत
बहुत ही हम कैजुअली लेते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट पावर सिस्टम जितना बड़ा है उसमें से 50% वेटेज ये कैरी करता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो टॉपिक है वो 50% आपके कौन से ही पीएसयू के लिए कैरी आउट करेगा। मैं इसका डिटेल जो है पीडीएफ, मेरे पास पीडीएफ है कौन से सब्जेक्ट को क्या वेटेज है, मैं एक ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा क्योंकि राइटिंग में उतना नहीं आ रहा है। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिए कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर सिस्टम आप जब पढ़ रहे हो तो सेकंड जब आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, सेकंड सेकंड जो है स्विच गियर। स्विच गियर आप जब पढ़ रहे हो तो स्विच गियर। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए क्या नहीं क्या है मैं सब बता दूंगा। जूनियर इंजीनियरिंग और एई में क्या फर्क है। जब हम नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क में ट्रांजिएंट टू पोर्ट जेई के लिए नहीं है। मशीन्स में सब मशीन्स जेई के लिए है। पावर सिस्टम में कौन सा पार्ट नहीं है मैं वो भी बता दूंगा कि एई के लिए है और जेई के लिए नहीं। अप्रोक्सीमेटली सेम सिलेबस है, सिर्फ 20% रिड्यूस कर दिया सिलेबस तो जेई के लिए है, और पूरा 100% जो एई के लिए है। एई के लिए पूरा बताऊंगा वो है, जो एई जेई के लिए नहीं उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा जब बताऊंगा। स्विच गियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्विच गियर में रिलेज एंड ब्रेकर्स एंड प्रोटेक्शन ये तीनों भी आते हैं, लेकिन स्विच गियर से सिर्फ 20% क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। 20%, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, एक दो क्वेश्चंस जो रिले आपके फेवरेट रिले, डिस्टेंस रिलेज, ए रिलेज, इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो कि कॉमन रिलेज है। आप जब प्रिपरेशन को उतरेंगे तब अब मेरा वीडियोस भी है, ब्रेन ब्रशअप एकेडमी बोल के यूट्यूब पे वीडियोस है, उसमें मैं हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस दिया हूँ कि इस पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आज ब्रीफ में बताना चाहता हूँ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मोटिवेट मतलब थोड़ा बूस्ट हो जाए कि क्या आइडिया, एक ब्रीफ आइडिया आ जाए। तो मैं इस सेशन में उतना ही बताना चाहता हूँ। देखो, और नेक्स्ट मशीन आता है, वो होता है नेक्स्ट पावर सिस्टम का थर्ड जो टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है कि वो टॉपिक है जनरेशन। जनरेशन बघा, देखो क्या है, जनरेशन में 3 पावर प्लांट्स है। बेसिकली बहुत सारे पावर प्लांट है, 3 ही पढ़ना है पढ़ते वक्त, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो। ये 3 पावर प्लांट से ही आपको क्वेश्चन डिजाइन होगा 101%। 101%। और इनमें एक जनरेशन में पार्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिसमें आपको डेफिनेशन है पीक लोड, मैक्सिमम लोड, इसमें से 100% एक क्वेश्चन, और ये पावर प्लांट से 100% एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डिजाइन होता है। जो पीएसयू के एग्जाम होते हैं उनमें ये 2 सब्जेक्ट से इससे 2 ही क्वेश्चन, एक तो पावर प्लांट से एक डिजाइन होता है और एक इकोनॉमिक्स से डिजाइन होता है। ये सिर्फ पढ़ना है इस थर्ड पॉइंट में। और जो फोर्थ पॉइंट है जो जेई के लिए नहीं है, जो जेई के लिए नहीं है, सिर्फ एई के लिए है। पावर सिस्टम का फोर्थ जो पॉइंट है, पावर सिस्टम का फोर्थ, वो ट्रांजिएंट एनालिसिस, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिएंट एनालिसिस। इसमें है आपका पावर कर्व आएगा, पूरा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी के पूरे कंसेप्ट इसमें कर्व हो गए, पावर कर्व का होगा, स्विंग इक्वेशन कवर होगा। इसमें सब ये जो है सिर्फ एई जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए होता है। ये ऑल अबाउट मशीन्स एंड पावर सिस्टम हो गया। जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो फर्स्ट ये सब्जेक्ट और फर्स्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल करना है, नेटवर्क करना है, उसके पैरेलल में एई के लिए कर रहे हैं, और इसके बाद मशीन्स और पावर सिस्टम लेना ही लेना है। थोड़ा देर ज्यादा लगेगा हर एक सब्जेक्ट को, आपको प्रिपरेशन करते 30 डेज लगेंगे, इसको 45 डेज लगेंगे। लेकिन इसको प्रिपेयर करने के बाद अपना खुद का नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। मेरे पास जो पीडीएफ है तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, जो जिस सब्जेक्ट के चाहिए, जो मेरे शॉर्ट नोट्स है वो अपलोड करूंगा। आपको जो हेल्प चाहिए, जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए मैं हेल्प कर दूंगा। मेरा अपने एल्यूमनाई ग्रुप में भी है, और लास्ट में मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, जिसपे मैं आपको थोड़ा जितना मेरे से हो सकता है उतना गाइडेंस कर दूंगा। अभी देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे कौन सा जाना है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको ब्रीफ में आ जाएगा कि मशीन इतना बड़ा होता है, पावर सिस्टम इतना बड़ा होता है, सिर्फ उसमें से क्या पढ़ना है वो आइडिया आ गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल का आ गया। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है
वो एनालॉग एंड डिजिटल। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल के जब प्रिपरेशन करते हैं एनालॉग एंड डिजिटल बोलते हैं। वो नेटवर्क हम है ना एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स को इग्नोर कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स ही एग्जाम एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है क्योंकि एनालॉग बहुत ज्यादा वाइड सब्जेक्ट है। अपना पावर सिस्टम है ना, उससे ही ज्यादा कई ज्यादा एनालॉग का सिलेबस है। मतलब बहुत चीजें याद रखना पड़ता है, एम्पलीफायर ये वो, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ओपैम का कंसेप्ट है, उसमें से 100% क्वेश्चन डिजाइन होता है। डायोड की कंसेप्ट है, उसमें से एक क्वेश्चन डिजाइन होता है। बीजेटी पे क्वेश्चन डिजाइन होता है। ये सब पॉइंट एनालिसिस करके आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और डिजिटल बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। और ये दो सब्जेक्ट मिला के 4 to 5 क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। जब जब हम एनालिसिस के रिजल्ट के एनालिसिस पे, फाइनल रिजल्ट के एनालिसिस पे जाते हैं, तो ये दो सब्जेक्ट है ना, जिसने और छोड़े उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि 4 to 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स का मार्जिन हो गया, अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का मार्जिन हो गया। और यही रिजल्ट का सबसे बड़ा, रिजल्ट में आप नहीं आ रहे, इसका सबसे बड़ा रीजन है हम इलेक्ट्रॉनिक्स को इग्नोर कर रहे हैं। ये याद रखना कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स को इग्नोर मत करिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ही, हम तो सब परफेक्ट होते हैं, सब कोर में लगे रहते हैं, लेकिन हम क्या क्या करते हैं, जो बंदे जो करते नहीं वो करना है, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम मांगती है। माइनर डिफरेंस होता है आपके रिजल्ट के और आपके रिजल्ट में, और जिसका रिजल्ट नहीं आया उसके माइनर डिफरेंस होता है। वो माइनर डिफरेंस ये चीजें क्रिएट करती है। तो आपको जब प्रिपेयर करते हो तो ये चीजें डिजिटल एंड एनालॉग प्रिपरेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अपना सब्जेक्ट जो सबसे सिंपल है, मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है ना, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं ना, उनसे बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। मेजरमेंट में दो मेजरमेंट है। एक है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, जिसमें तुम्हारा ब्रिजेस आते हैं, एसी ब्रिजेस, डीसी ब्रिजेस, जिसमें तुम्हारा एरर एनालिसिस आता है। और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मतलब वोल्ट मीटर अलग अलग, EMI, PMMC, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में होते हैं। और दूसरा मेजरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें क्या होता है रे, CRO आता है, तुम्हारा मल्टीमीटर आता है, उसका वर्किंग क्या होता है, अंदर क्या चीजें होती है, उस पे क्वेश्चंस अलग अलग, क्यू मीटर होता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में आता है। ये ब्रीफली तुमको 20 आवर्स, मुझे 20 आवर्स जो प्रिपरेशन किया है उनको 20 आवर्स ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। ज्यादा टाइम लेने वाला सब्जेक्ट नहीं, ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है मेजरमेंट एक मतलब, और छोड़ना ही छोड़ना नहीं। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन डिजाइन होते हैं और सब एई के लिए और जेई के लिए, दोनों के लिए होता है। और दोनों ही मेजरमेंट दोनों के लिए होते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल में ट्रांसड्यूसर्स भी आते हैं। तो मेजरमेंट हम जो सेकेंड ईयर में, थर्ड या फोर्थ सेम में प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। अभी देखिए कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है। अभी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ही, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, बेसिक्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं बोलूंगा बेसिक ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहला टॉपिक है, जिसमें सब थायरिस्टर फैमिलीज है, वो सिर्फ जेई ने प्रिपेयर करना चाहिए। जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उसने वही एक ही चैप्टर प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें से ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। जेई वाले याद रखिए, अपने को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा डीप में जाना नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला थायरिस्टर, थायरिस्ट के प्रॉपर्टीज, उसके टर्निंग ऑन ऑफ मेथड्स, और उनका पूरा ब्रीफ में पूरा इंट्रोडक्शन। ओके। और जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्कोरिंग के लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐसा सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम से आता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन अपना कोर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है। ड्राइव्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, आपको जो सब्जेक्ट होता है उसमें 4 ही टॉपिक होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक रेक्टिफायर, एक बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, चॉपर और रेक्टिफायर, ये 4 टॉपिक है। ये 4 ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से 4 to 5 ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं एई के लिए। जेई के लिए 2 to 3 क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। जेई के लिए ज्यादा वेटेज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एई के लिए ज्यादा वेटेज का सब्जेक्ट है। कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, इसलिए और छोड़ते हैं लोग। लेकिन इसमें से बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, आपको वेवफॉर्म अंडरस्टैंडिंग आ गया तो बहुत ही अच्छे से आपको ये सब्जेक्ट मार्क्स दे देता है। ओके। अभी
मिसेलेनियस सब्जेक्ट है, इतना कोर उतने सब्जेक्ट नहीं है। जो कंट्रोल सिस्टम आता है वो कंट्रोल सिस्टम है, वो सिर्फ एई के लिए आता है, जेई के लिए प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं कंट्रोल सिस्टम। तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए तो कंट्रोल सिस्टम को हाथ मत लगाइए, पहले कोर सब्जेक्ट प्रिपेयर करिए। ओके, और नेक्स्ट जो है, अभी बेसिक आपको समझ में आ गया है तो 50% जो कोर सब्जेक्ट है वो वेटेज देते हैं। मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि 50% जो वेटेज है, 50% पावर सिस्टम मशीन देते हैं, फिर उसमें से मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रिकल किया तो आपको 10 to 20% वेटेज उसका हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी 10 to 20% इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ये 10 to 20% वेटेज देता है, टेक्निकल का वेटेज बोल रहा हूँ। और जो लास्ट में बच गया, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसेलेनियस है, हीटिंग, वेल्डिंग, ये मिसेलेनियस टॉपिक्स है, लाइटिंग। ओके, ये एक आधा क्वेश्चन कभी डिजाइन होता है, एक आधा क्वेश्चन लाइटिंग, हीटिंग, ट्रैक्शन, तुम ट्रैक्शन पूरा पढ़ते हो, उसको पहले प्रिपेयर मत करो। पहले ये सब कोर सब्जेक्ट जो वेटेज वाले हैं उनको प्रिपेयर कीजिए जब आप प्रिपरेशन मोड में हो। नहीं तो मेरे को हीटिंग बहुत पसंद है, मैं पढ़ूंगा, उसकी जरूरत ही नहीं है, हीटिंग वेल्डिंग की जरूरत नहीं तो मेरे को ट्रैक्शन सब्जेक्ट था, मैं ट्रैक्शन में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं ट्रैक्शन पढ़ूंगा। इधर प्रिपरेशन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हैं तो दिल से नहीं करना है, दिमाग से करना है कि क्या पूछा जा सकता है। हम दिल से, मेरे को हाँ ये सब्जेक्ट बहुत ही पसंद है, मैं इससे ही 1 मंथ प्रिपरेशन करूंगा, ये बहुत ही गलत चीज है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिमाग से करना है, ये वेटेज का एनालिसिस करना है, कौन सा सब्जेक्ट वेटेज अच्छा है, उस तरीके से प्रिपरेशन मोड को अपने आगे बढ़ाना है। कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सब्जेक्ट से एंड करना है, किसको प्रायोरिटी कितना देना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। जब आप प्रिपरेशन करते हो, आपने डायरेक्टली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया तो कुछ फायदा नहीं है। आप जेई प्रिपरेशन 2 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट है और आप क्या पढ़ना है वही पता नहीं है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ जाते हो और उसमें से 2 मार्क्स निकल के आते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रिपेयर करिए, लेकिन उसको कौन से मोड में, कौन से, आपका हाफ सिलेबस हो गया, अभी एक थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेना है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए। ओके, ये पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट के ओवरव्यू हो गया। और जो नॉन टेक्निकल है, जो मराठी और एप्टी रीजनिंग है, ओके, एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग है। एक्चुअली एप्टीट्यूड और रीजनिंग आईबीपीएस लेवल की एप्टीट्यूड और रीजनिंग होती है। हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ हाफ मार्क होता है, देखो कितना फर्क गिरता है। क्या होता है, हर एक क्वेश्चन के लिए ओनली हाफ मार्क्स, ओनली हाफ मार्क्स। 40 क्वेश्चंस है तो आपको 20 ही मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स होता है, ध्यान में रखिए। एप्टीट्यूड और रीजनिंग एक क्वेश्चन हाफ मार्क देता है, टेक्निकल का एक क्वेश्चन 2.2 मार्क्स देता है। तो टेक्निकल बहुत ही डोमिनेट करता है जब आप स्कोरिंग के लिए जाते हैं। और एप्टी और रीजनिंग क्या क्या डोमिनेट करता है, जब टेक्निकल के 55 क्वेश्चन छोड़ दिए तो मराठी जो होता है, मराठी बहुत ही सिंपल 10th क्लास के लेवल का मराठी होता है, ध्यान में रखिए। 10th क्लास के लेवल का, हम इंजीनियरिंग किए तो मराठी कैसे पढ़ेंगे, ऐसा बहुत लोगों का होता है, लेकिन मराठी भी एक बार आपके रिजल्ट में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। 20 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के लिए। मराठी और एप्टीट्यूड रीजनिंग, इनका हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो हाफ मार्क्स होता है, प्लीज याद रखिए, हाफ मार्क्स होता है। लेकिन मराठी जब प्रिपेयर करते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग एज ए इंजीनियर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे, ये दिए होंगे, आपने बहुत सारे कंपनीज को अप्लाई किया होगा, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। ओके, उससे हिसाब से थोड़ा टफ लेवल होता है। एक्चुअली हम प्रिपेयर करते हैं तो लेवल उतना ज्यादा नहीं होता है। जब आईबीपीएस कंडक्ट करते हैं, एक्चुअली ये जो कंडक्ट करती है महाट्रांसको, महाडिस्कॉम ट्रांसको, ये आईबीपीएस एग्जाम, आईबीपीएस जो है बॉडी वो कंडक्ट करती है, तो उनका जो एप्टी और रीजनिंग का लेवल है बहुत ही ज्यादा, जो क्लर्क लेवल का होता है जेई के लिए और पीओ लेवल का होता है एई के लिए, बहुत ही ज्यादा टफ होता है। लेकिन उसमें से ही अपने को ज्यादा नंबर लाना है, कंसिडर करना है कि 40 क्वेश्चन है, 20 तो मेरे को मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स मिल गए और मराठी में 5 to 7 मार्क्स मिल गए, तो आप स्कोरिंग में हो, आप कंपटीशन में हो। लेकिन आपको टेक्निकल बहुत ही अच्छी तरह से करना पड़ेगा जब आप पीएसयू के लिए कौन से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपका टेक्निकल बहुत ज्यादा मार्क देता है। इसके पैरेलल में आपको
नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को भी बैलेंस करना होगा जब आप प्रिपरेशन करना है। 80% वेटेज आप टेक्निकल को दे दिए, लेकिन 20% को मत भूल जाइए। नहीं तो मैंने टेक्निकल किया 110 मार्क्स का, मेरे को उतना ही करना है, ऐसा मत सोचिए। दोनों ही दोनों ही जो है उसको बैलेंस रखिए। इसमें ऐसा नहीं रहता है, देखो जो एग्जाम्स होते हैं आईबीपीएस कंडक्ट करता है, उसमें सेक्शनल पासिंग नहीं होता है कि टेक्निकल के लिए तुमको इतना ही मार्क पढ़ना है। सेक्शनल पासिंग नहीं होता है, क्योंकि मराठी के लिए आपको 10 में से 2 तो मार्क मिनिमम पढ़ना चाहिए, ऐसा पासिंग नहीं होता है। आपको मार्क्स, पूरे मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं जितना है। टेक्निकल के लिए आपको 110 आ गए तो कोई डिफिकल्ट नहीं, टेक्निकल को आपको 70 आ गए तो कोई, मतलब उसका पूरा दोनों का ही ऐड होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, और उसके हिसाब से रिजल्ट में आते हैं। ओके, और बहुत सारे पीएसयूज के ऐड होते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है ब्रेन ब्रशअप, मैं लिंक भी ग्रुप पे शेयर करूंगा, उधर ज्वाइन हो जाइए। उधर हर एक ऐड आता है, उसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा कि कौन सा ऐड आने वाला है। एक्चुअली क्या होता है ना, कॉलेज लाइफ में हम भूल जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ये आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऐड आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन से ऐड को कैसे प्रिपेयर करना है। तो टेलीग्राम में चैनल पे ही मेरे ज्वाइन हो जाइए। उधर मैं अपडेट्स देता हूँ, जो पीएसयू के ऑल ओवर इंडिया में जो एग्जाम हो रहे हैं, स्टेट लेवल के पीएसयू के हो रहे हैं, उसके अपडेट देता हूँ। और यूट्यूब को भी फॉलो करिए, वहां मैंने कई सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ, कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से कंट्रोल सिस्टम से पढ़ा चुका हूँ, कैसे अप्रोच रखना है उसका भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, आज के लिए उतना ही। फिर मिलेंगे कभी। ओके सर, पोस्ट कौन कर रहा है प्लीज। Hi, yes, Satish. How are you, man? हाँ बोलिए सर। हाँ Yeah, it is. Thanks for joining us and accepting invitation. ओके सर, ओके, नो सर, आई विल बी कनेक्टेड फर्दर also in future for बहुत बहुत helping the people. हेल्पफुल होगा ये सब सेशन, डेफिनेटली सब स्टूडेंट्स लोगों के लिए, नॉट इलेक्ट्रिकल लाइक मैकेनिकल, बाकी के ब्रांचेस के लिए भी। और जो यस जो यस तुमने यस। टाइम दिया है उसके लिए हम कोई धन्यवाद क्वेश्चन करते हैं। है स्टूडेंट के तो सर पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते यस, हैं कुछ अभी क्वेश्चन। अभी इसमें कोऑर्डिनेटर है अपने इस टॉक के, आई थिंक ऋषिकेश, सौरभ, you हाँ can यस। take questions of students. Please go ahead. Thank you, Satish. Yes, I will be on mute now. ओके 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 सर। हाँ Okay. Thank you, Satish sir, for यस enlightening us यस। with a kind word and also for being an ideal example for inspiration. Right now, to proceed with the program, I would like all to participate in the question and answer session, because after learning something, if you are arriving with a question or query, then it's indicating that you are thinking on it, right? So anyone having the question, Yes, you can put it in your the chat voice box. is not clear. Who is speaking? Your voice is very less. Who is speaking? yes, you are quite. And Yes, thank you, we sir, for request to having all the such a. students that you can ask your question हाँ in the chat box. एक्चुअली मैं एक एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कमेंट में डाल रहे हैं। Yes, इज गुड लेवल yes, पीएसयू कंसीडर मार्क्स फॉर गेट। एक्चुअली जब आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो पीएसयूज होते हैं ना, उसमें 2 पोस्ट होते हैं। एक एक्चुअली आपको गेट के थ्रू होता है, और एक खुद पीएसयू एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसका याद रखना है। एक्चुअली हमको पता है कि सिर्फ हम जो है ना, आई एम ऑडिबल ऋषिकेश, आई एम ऑडिबल। Yes, sir. Yes, यस, एक्चुअली एक ने क्वेश्चन पूछा है कि पीएसयू गेट में, और क्या है, गेट के थ्रू ही कंडक्ट करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप याद में रखिए कि पीएसयू अपने डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर को भी रिक्रूट करता है। डिप्लोमा वाले के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, और जो गेट प्रिपेयर करते हैं उनके लिए तो बहुत है। लेकिन ऐसा मत कंसिडर कीजिए कि गेट होगा तभी मेरा पीएसयू में होगा, ऐसा नहीं है। ओएनजीसी है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, सब अपना जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, उनका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसके प्रमोशन से आप, उसका प्रमोशन 4 या 6 साल बाद आप एक गेट के लेवल के जो एस्पिरेंट्स होता है उसके लेवल पे अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट के थ्रू तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। लेकिन एक्चुअली क्या है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना कॉलेज डेज में, गेट को बहुत घबराते हैं। ये बहुत ही माइंडसेट अलग है।
प्लीज प्रोवाइड द डिटेल सिलेबस शीट फॉर PSU। या मैं टेलीग्राम या अपने ग्रुप पे कौन से सब्जेक्ट में से क्या पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा तरीके से एनालिसिस करके कौन से पॉइंट से क्या पढ़ना है और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने राइट डाउन करके एक सिलेबस निकाला है, वो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। और मेरा यूट्यूब का चैनल का नेम है ब्रेन ब्रशअप एकेडमी, थोड़ा ये है लेंदी है, ब्रेन ब्रशअप एकेडमी। मैं ग्रुप पे टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और किसको क्या डाउट है पूछिए। डाउट एनीवन? Hello students, anyone is having doubt, kindly put us in the chat. What are the advantages of ESC? ESC के लिए एक्चुअली क्या हो गया है, रेलवे जो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था ESC में, वो अभी ऐसे ऐसा डिसाइड हुआ है कि पिछले साल से कि रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो अलग से एग्जाम कंडक्ट करेगा। मतलब आप उसका AE बोल के ऐसा एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियर बोल के एक एग्जाम है, वो निकालेगी, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन कुछ नहीं है। ESC में अभी बहुत ही कम वैकेंसीज आ रही है, क्योंकि रेलवे जो है जो मैक्सिमम ये होते हैं, जब आप करियर ESC के लिए जा रहे हैं तो ये याद में रखिए कि कम पोस्ट के लिए आपको पूरे इंडिया लेवल पे टफ फाइट करना है। और बहुत सारे एडवांटेज है, वो गवर्नमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप एक गैजेटेड क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, तो ESC के बहुत सारे एडवांटेज है। लेकिन उससे उससे मेरे को लग रहा है कि ESC के लिए आप डिमांड कम हो गई, क्योंकि रेलवे जो है 50% उसमें से वैकेंसीज कैरिड आउट करता था। अभी ESC का जो प्रिपरेशन का कर रहे हैं लड़के, उसमें से बहुत कम लड़के पूरे डेडिकेटली कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने ESC के थ्रू रिक्रूट करना बंद कर दिया है, खुद का एग्जाम निकाल दिया है। अभी तक उसका रिक्रूटमेंट नहीं है, आने के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। State mostly theoretical based question are based on numerical approach. या नाइस क्वेश्चन। जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट PSU के, वो थ्योरेटिकल बेस होते हैं, लेकिन क्या है अभी अप्रोच चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि थ्योरेटिकल, अभी एक मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि ये डिवाइस का किसके लिए यूज होता है, कैपेसिटर आपका कौन मेजर करता है, डिसऑर्टी ब्रिज, ऐसा आप बोलेंगे, मेजरमेंट का क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अभी चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि क्या है ना, प्रिपरेशन को इतने बंदे आ रहे हैं, और उनको क्या चाहिए, जो अच्छे बंदे पढ़ रहे हैं उनका ही रिजल्ट चाहिए। ओके, उनको डेविएशन करने में, उनको डिवाइड करने में, कौन बंदा अच्छा है कौन बंदा नहीं है, इसके लिए वो अभी प्रॉब्लमेटिक अप्रोच इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक अप्रोच नहीं है, पहले थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आते हैं, मैं उस पे एग्रीड हूँ, लेकिन अभी पैटर्न चेंज हुआ है। ओके, तो आप जब AE के लिए प्रिपेयर करते हैं तो न्यूमेरिकल मस्ट सॉल्व कीजिए। जो गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ESC के क्या रेफर करना है, ESC के 1 मार्क क्वेश्चन, गेट के 1 मार्क क्वेश्चन रेफर कीजिए। और आपको सबसे बढ़िया बुक जो है JB गुप्ता, आप नोट्स मत पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़िए। JB गुप्ता में 20,000, 14 या 20,000 तक क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन छोड़ आपने पूरे कर लिए ना, तो आप कौन सा एग्जाम PSU का, JE और AE का कवर कर दोगे। ओके, विच आर द एग्जाम फॉर PSU? एग्जाम फॉर PSU, पहले तो आप ऑफिसर लेवल पे गेट थ्रू जा सकते हैं, और दूसरा जो है आप जूनियर इंजीनियर, एज अ असिस्टेंट ट्रेनिंग इंजीनियर, आप उनका एक एग्जाम होता है, उनका खुद वो बॉडी कंडक्ट करती है जो PSU होती है, उसके थ्रू आप उसमें एंटर हो सकते हैं। दो ही वे है, इंजीनियरिंग के लिए 2 ही वे है, तो वो 2 वे से आप PSU में एंटर हो सकते हैं। अभी कुछ PSU HPCL ने अभी एग्जाम कंडक्ट किया था, उनका खुद का ही एग्जाम कंडक्ट किया था ऑफिसर लेवल के लिए। ऐसे ही PSU है जो खुद का एग्जाम गेट के थ्रू नहीं करती, खुद का ही एग्जाम कंडक्ट करती है। ओके, टेल्स अबाउट PSU एंड गेट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जो है PSU में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप BPCL में जाओगे, ICL में जाओगे, ONGC में जाओगे, कोल इंडिया में जाओगे, ये 4 PSU में इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत ही ज्यादा गेल में, ये 5 ऑयल सेक्टर के जो PSUs है ना, उसमें इंस्ट्रूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज होती है।
जूनियर इंजीनियर के लिए हो भी, गेट के लिए भी हो। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसा नहीं कि हमारे कॉलेज में 30 की स्ट्रेंथ है तो इंस्ट्रूमेंट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं। इंस्ट्रूमेंटेशन में जो ओएनजीसी में जॉब प्रोफाइल पे वर्क कर रहा हूँ, वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है उनकी। तो ऐसा नहीं कि 30 का स्ट्रेंथ है अपने कॉलेज में, लेकिन बहुत ही जो कंट्रोल्स होते हैं ना, आपके जो कंट्रोल्स है, पूरा ओएनजीसी, पूरा हमारे फील्ड में पूरा कंट्रोल सिस्टम है ना, पूरा कंट्रोल, टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम्स है, उसका कैलिब्रेशन है, पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन संभालती है। बहुत ही ज्यादा आपको वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स में है जो आप पीएसयू में काम करोगे, और बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी है। ऐसा कहोगे कि सर गेट में इतना रैंक आया तो भी कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। इफ यू आर ज्वाइनिंग डिप्लोमा लेवल पीएसयू देन यू गेट एग्जाम फॉर एई। यस 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 यस, आप एक बार जेई का भी दे सकते हैं, एई का भी दे सकते हैं, दोनों एग्जाम एक साथ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके ऋषिकेश। Yes, sir. Yes, sir. We think that the questions are over from the students. Yes, yes. Yes, sir. Finally, thank you, sir, as you give us the time, even you are too busy, and also for your wonderful speech. We gain a lot from it. We certainly believe that many of us have been inspired by today. Thank you very much, sir.